Good afternoon, dear student. I am very glad for that to inform to now today the online teaching classes that started from to the Urmila Devi Degree College. I am very thankful for to the managers, teachers and teaching staff. So here to the revision class, the BSc second year zoology and paper animal physiology. This is the third paper of the BSc second year zoology subject. So now going to the lecture, and now today's lecture is to the physiology. What is the physiology? Physiology क्या है? फिजियोलॉजी वर्ड्स को किसने दिया, फिजियोलॉजी टू वर्ड्स आया तो किस ईयर में आया और ये किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है और उसका क्या मतलब होता है। उसके बाद हम उसी क्रम में इसके डेफिनेशंस को समझेंगे। अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन होंगे जो कि आपको क्रमशः बारी बारी से हम उसको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले नाउ first of all, the term physiology originated from, जो physiology जो वर्ड्स है वो ग्रीक रूट बोला जाता है। साइंस के जो वर्ड्स होते हैं अधिकतर वो ग्रीक वर्ड से आते हैं। About 80% of the words is stem from the Greek words and another Latin word and others. So the basics of the physiology which came from the Greek word, ये ग्रीक वर्ड से आया है और जिसका मतलब ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं, ग्रीक वर्ड में इसको physiologikos बोलते हैं। This is the word of the Greek physiologikos। physiologikos का मतलब क्या होता है? Discourse on the natural knowledge। discourse का मतलब होता है अध्ययन, इसको हम स्टडी भी बोल सकते हैं। स्टडी ऑन द नेचुरल नॉलेज, जो प्राकृतिक नॉलेज होता है, प्राकृतिक ज्ञान होता है, उसके विषय में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लाइन हम इसको समझ सकते हैं। सेकेंड इज दैट द टर्म फिजियोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच फिजिशियन जीन फर्मे इन द 1552। अब दूसरी बात ये आती है कि फिजियोलॉजी का जो टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड से आया उसको किस वैज्ञानिक ने दिया और वो कहाँ के थे और किस सन में थे। तो उसकी जो बात आती है, टर्मिनोलॉजी की बात आती है, इन्वेंशन की बात आती है, इन्यूमरेशन की बात आती है और पॉइंट की बात आती है। इसका मतलब है कि किसने उत्पत्ति की शब्द की, उसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे
जीवधारियों के शरीर से होने जीवधारियों के शरीर में होने वाली प्रक्रियाएं या जीवधारियों के किसी एक विशेष भाग से, भाग का मतलब ये होता है कि जो जीवधारियों का जो शरीर होता है वो कई विभिन्न प्रकार के ऑर्गन से बना है, इसलिए उसके विभिन्न पार्ट्स, दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, सो दैट वी कैन से दैट इज द पार्ट्स ऑफ द एनिमल्स और द लिविंग थिंग्स to the organized and demonstrated and performing to the particular function for the particular mechanism. So here the branch of the biology that deals with the normal functions of the living organism and their parts. So in another words, there are the third definition we have taken of living matter in the brackets such as the organs, tissues or the cells. Living matter, that is the particular, as you know that about the what is the cell. The cell which are had to the living material. The living material is the protoplasm, the protoplasm which are had to the lot of the material such like as to the inorganic and organic substances. So that here is the mentioning that the living matter such as the organs, tissues or the cells. Living matter, that is such as the organs, tissues or the cells, that is the differentiation level, that is the differentiation level of the body organization. The animals which are categorized into the labels according to their body organization. So here we can say that is the cell, and second is the tissues, and after that to the making in the more and more complex one to the indicate करता है जैसा कि organs, and after the organs which are communicate to the form to the a proper size of the animal's body. So here the living matter such as the organs, tissues or the cells and physical and chemical phenomena involved. Cell में, tissue में या organ में और physical and chemical phenomena किसी भी जीवधारी के सेल में, उसके ऑर्गन्स में होने वाली भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं होती हैं वो फिजियोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो अकॉर्डिंग टू द फिजियोलॉजी हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी जीवधारी में, खासकर हम बेसिक रूप से लेके चल रहे हैं एनिमल फिजियोलॉजी को, जंतु या प्राणी जो है कार्य जो होती है उसके संदर्भ में, तो किसी भी प्राणी के, किसी भी जंतु के अंतर्गत जो रासायनिक, भौतिक और रासायनिक जो गतिविधियां लगातार हमारे जीवन को चलाने के लिए होती हैं वो हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब बात आती है कि व्हाट इज द फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम किन चीजों को पढ़ेंगे, किन चीजों को पढ़ा जाता है और उनको किस प्रकार से हम देखेंगे, तो उनका साइंस में या मेडिकल साइंस में क्या उद्देश्य है, इसका पढ़ने का क्या उद्देश्य है, किस लिए हम पढ़ेंगे इसको, तो हम यहाँ पे द अल्टीमेट गोल, व्हाट इज द गोल ऑफ द फिजियोलॉजी, व्हाट इज द डिसिप्लिन और द थिंकिंग अबाउट द is going to the process of the physiology. The ultimate goal of the physiology is to understand the mechanism that operate in living organism at all levels, ranging from to the subcellular level to the integrated whole animals. बहुत ही अच्छी लाइन है, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फिजियोलॉजी का जो अल्टीमेट गोल माना गया है वो कि प्रत्येक जो जीवधारी है वो अलग अलग रासायनिक संगठनों से मिलके अलग अलग स्तर पे बना है और उसके अंतर्गत उसमें अलग अलग गतिविधियां होती हैं और वो जो गतिविधियां होती है वो पर्टिकुलर लेवल पे होती हैं जो कि उस पूरे एनिमल्स को इंटीग्रेट करती है।
of the study of the physiology. The study of the physiology may begins with the study of cells physiology and the physiology of the different body system. अब हम अगर फिजियोलॉजी की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें तो हम उसमें क्या देखेंगे, क्या पाएंगे और उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे जो कि कन्वीनियंट हो, सुविधाजनक हो, उसको हम अच्छे तरीके से समझ सकें, उसको जान सकें। नॉलेज की बात होती है साइंस में, अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी कॉन्सेप्ट की। तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या कहने जा रहे हैं, हम क्या समझेंगे। We just understand here to the study of the physiology may begins with the study of the cell physiology, सेल की फिजियोलॉजी। और सेल की फिजियोलॉजी के साथ साथ हम क्या करेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम। तो बॉडी के डिफरेंट सिस्टम, लेकिन सबसे पहली बात है कि हमने ये क्या बोला, सेल फिजियोलॉजी। तो सेल के अंदर फिजियोलॉजी, सेल की फिजियोलॉजी। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे हम कि पहले सेल की फिजियोलॉजी जानने से पहले व्हाट इज दिस सेल, व्हाट अबाउट टू द सेल, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टू द सेल। सेल क्या होता है, सेल की परिभाषा क्या होती है, सेल का महत्व क्या है, सेल क्या, सेल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से जो ऑर्गेनिज्म है या कोई भी एनिमल्स है वो उसकी उत्पत्ति हुआ है। हम इन सब चीजों पे यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मेंशन करते हैं, आपने हमेशा approximately about to the level of the 6th standard classes to the and the reaching to the BSc second year classes. So always you know that very well what is the cell, what is the meaning of the cell, what about the cell. सेल से आप क्या समझते हैं, सेल क्या है, सेल कितने प्रकार का होता है, सेल का क्या महत्व है, सेल की साइज क्या होती है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको जानना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम सेल नहीं जानेंगे तो सेल के अंदर के मटेरियल को नहीं जान पाएंगे। सेल के मटेरियल को अगर नहीं जान पाएंगे तो उसमें होने वाले जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोसेसेस होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो मैकेनिज्म होते हैं, उसको हम ना समझ पाएंगे। तो इसलिए बेसिक्स, फंडामेंटल चीज ये है कि हम उसके बेसिक लेवल पे जाए। तो बेसिक में लेवल का मतलब है कि व्हाट अबाउट टू द सेल, व्हाट इज द सेल। सेल is the basic functioning unit of the life. Cell is the basic unit of the organism. Cell is the basic unit of the animals. So here we are just mentioned that about the cell is performed to the end unit of the body. Any kinds of the animals of the organism which are came on the earth and survived their entity, that means to the make to the cell. So here the cell is performed to the unit of the cell. इसके कहने का मतलब होता है कि किसी भी जीवधारी की, किसी भी एनिमल्स का जो निर्माण होता है, उसका जो कार्य होता है वो सेल के द्वारा किया जाता है। सेल स्ट्रक्चर भी बनाएगा और सेल के द्वारा उसकी विभिन्न प्रकार की जो फंक्शनिंग होती है, क्रियाविधि होती है, प्रोसीजर होता है, मैकेनिज्म होता है, उसके माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे, आज देखते हैं कि अगर हमने ये समझ लिया कि सेल बहुत प्रकार के हैं, सेल का शेप भी बहुत प्रकार का होता है, हम उधर नहीं जाएंगे क्योंकि हमको फिजियोलॉजी की तरफ चलना है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि सेल को तो हमने जान लिया कि इसकी यूनिट है। यूनिट का मतलब होता है एक। अगर हम कंस्टिट्यूशन करें, मतलब उसका एग्रीगेशन करें और उसको लगातार एक प्रोसेस होता है, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेंशन करना चाहेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे तो शायद आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हम यहाँ पे कहने जा रहे हैं जस्ट द प्रोसीजर ऑफ द इवोल्यूशन। उत्विकास, किसी भी एनिमल्स का उत्विकास ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हम उनकी चीजों को, उनके अस्तित्व को और उनके टाइम को और उनके जोन को, उनके इरा को समझते हुए उनकी क्रिया प्रणाली, क्रियाविधि को आगे की तरफ हम बढ़ते चलते देखते हैं। तो बहुत प्रकार की चीजें आई, थियरियां पे हमें नहीं जाना है, हमें बस यहाँ पे दिखाना ये है कि सेल बेसिक्स में बोला जाता है सेल इज द टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर, बट दैट इज द थिंग्स इज come to
सेल की क्या भूमिका है? सेल जो है अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन से सेल का किसी भी पर्टिकुलर एनिमल्स का निर्माण हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, जस्ट लुक एट हियर ऑन द व्हाइट बोर्ड, व्हाट इज I am writing here into the cell type, the prokaryotic cell, and second is the eukaryotic cell. Always the student is normally they study into the lower classes to the other cells too, prokaryote and eukaryote. But here meaning, what is the meaning of prokaryote and eukaryote? Meaning is the base. This is also made into the earlier to mention that about the all the scientific word and the terminology of the physiology and the other scientific word is come from to the Latin and the Greek word. So here to the prokaryotic cell is also is come from to the Greek word. What is the meaning of cell? Is the Greek word में इसको क्या बोलते हैं? क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल दो सब सेल, यहां पे दो ग्रीक वर्ड है, एक प्रोकैरियोटिक, तो प्रो अलग है, प्रो and second is karyotic. There are two types of the words which are combined and then to evaluate प्रोकैरियोटिक सेल। अब ग्रीक वर्ड में इसका क्या मतलब है? ग्रीक वर्ड में इसको बोलते हैं द प्रो, जैसा कि मैंने अभी बोला कि प्रो और कैरियोट अलग अलग सेल है, तो प्रो को क्या बोलते हैं? प्रो इज द प्रिमिटिव and second is carrion of the nucleus, which means that primitive मतलब simple, सामान्य, प्रारंभिक। इसका मतलब ये होता है कि उस प्रकार का सेल जबकि पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहली दशा, सबसे पहली उत्पत्ति किसी भी जो ऑर्गेनिज्म की हुई वो प्रोकैरियोटिक स्तर पे हुई। और प्रोकैरियोटिक, तो इसमें हमने जो कहा प्रोकैरियोटिक के बारे में, प्रो मींस प्रिमिटिव, कैरियन मींस न्यूक्लियस। इसका क्या मतलब है कि प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस, सामान्य प्रकार का अविकसित न्यूक्लियस, इसको साइंटिफिक वर्ड में इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोला जाता है। अविकसित न्यूक्लियस जिसमें केवल और केवल जीनोम पाया जाता है। कैसा? डीएनए, उसके बाहर आवरण नहीं होता, और आवरण न होने के कारण इसका मतलब ये इट मींस कैन से दैट इज द नेक्ड डीएनए। आवरण का मतलब न्यूक्लियस भी आवरित होता है और उसके ऊपर कवर होता है, उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसमें क्रोमेटिन फाइबर्स होती है, स्टोर प्रोटीन्स होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें होती हैं तो उसको हम प्रॉपर न्यूक्लियस बोलते हैं। लेकिन प्रिमिटिव के केस में, प्रोकैरियोट के केस में वहां पे ऐसा नहीं होता। उसके जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो आप कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म में वो वहां पे जो डीएनए होता है वो सस्पेंडेड वो उसी प्रकार से रहता है। तो इसीलिए जब न्यूक्लियस नहीं होता, पूरी तरीके से अविकसित न्यूक्लियस होता है, केवल डीएनए होता है, और उसको हम बैक्टीरियल सेल का, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया है, साइटोप्लाज्म, माइकोप्लाज्मा है, हाँ, ब्लू ग्लीन एल्गी है, ऐसे बहुत प्रकार के जो प्रिमिटिव टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उत्पत्ति इसके अंतर्गत रखी गई है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल बैक्टीरिया का है। तो बैक्टीरिया, दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड topics for the science too. Why are this is the why are said to the controversial topics? Because the bacteria is involved into the zoology and botany, both of them. As you think about the why are placing into the zoology and botany, because the bacteria which are have to the character of the both types, that is the particular cell, particular wall of the cellular layer। सेल के ऊपर एक पर्टिकुलर लेयर पाई जाती है जिसको सेल वॉल बोला जाता है। तो सेल वॉल की उपस्थिति जो है वो दर्शाती है कि ये प्लांट सेल की तरह कार्य करता है। लेकिन जो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनेल्स होते हैं
वो यूकैरियोटिक सेल की तरह कार्य करते हैं, इसलिए इसको एक अलग किंगडम में प्लेस ऑन कर दिया गया जिसको बोला जाता है मोनेरा। बिकॉज हमें अभी टैक्सोनॉमी नहीं जाना, हमें फिजियोलॉजी में समझनी है, तो हम वहां से आगे आते हैं। तो आप समझिए कि पहला मैंने बताया कि वो प्रिमिटिव कैरियोटिक न्यूक्लियस, सेकंड आते हैं यूकैरियोटिक सेल। यहां पे फिर से ग्रीक वर्ड है, दो वर्ड फिर से मिलकर बना है। अब आपको थोड़ा समझना है, you just understand about what is the meaning of the eukaryotic cell. There are also two words in the mixer, and that is the form of the eukaryotic cell, that is the eu and the karyon. Eu means with the good or well, and the karyon means nucleus. एक बात समझनी है, वहां पे आपने देखा कि प्रिमिटिव का मतलब, प्रो का मतलब प्रिमिटिव था, यहाँ पे दूसरा मतलब है यू का मतलब गुड और वेल। गुड और वेल का रिप्रेजेंटेशन ये दिखा रहा है कि जो न्यूक्लियस है वो प्रॉपर रूप से विकसित है, एकदम पूरी तरीके से डेवलप्ड न्यूक्लियस उसमें पाया जाता है, जिसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर कवर होता है, जिसको कवर को बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, क्रोमेटिन फाइबर होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है, न्यूक्लियोइड्स होते हैं। इतनी चीजें जब होती हैं तो उसको हम पूर्ण विकसित न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसी के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइप ऑफ द इंटीग्रेंट्स और द मटेरियल्स और द मींस दैट इज कॉल्ड टू द यूकैरियोटिक सेल और द रिफर टू द यूकैरियोटिक सेल। सो एज हियर as you can see, eukaryotic cell is a Greek, in the Greek word you are the good or well and the karyon is the nucleus. So अब मैंने ये आपको सेल क्यों बताया, फिजियोलॉजी में सेल का क्या महत्व है, यहाँ पे मैंने एक चीज आपको बताई थी पहले, थोड़ा सा हमने यहाँ पे लिखा था सेल फिजियोलॉजी एंड द फिजियोलॉजी ऑफ द डिफरेंट बॉडी सिस्टम, इंटीग्रेटेड होल एनिमल्स। किसी भी जो एनिमल्स का निर्माण हुआ है, हम आपने बीएससी फर्स्ट ईयर पे क्लासेस में आपने टैक्सोनॉमी को पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत आपने देखा कि वहां पे प्रोटोजोआ से लेके इकाइनोडर्मेटा और सेकेंडरी क्लासेस में प्रोकॉर्डेट्स से लेके मैमल्स तक सभी जीवधारियों को अलग अलग कैरेक्टर के आधार पे अलग अलग क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई किया है। कैरेक्टर हर लेवल पे अलग है। हम बड़े लेवल पे जाते हैं, बड़े लेवल का मतलब होता है किंगडम्स। उसके बाद लगातार हम माइन्यूट मतलब सूक्ष्म सी चीजों को के कैरेक्टर जो कि एनिमल्स या कोई प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म कंटेन किया है, उसके आधार पे हम उसको अलग अलग करते चलते हैं। तो बेसिक थिंग्स यहाँ पे ये है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल जिसमें मैंने कहा बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक सेल जो कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के साथ होता है, वो प्लांट और एनिमल्स का इसमें एग्जांपल के तौर पे मेंशनिंग होती है। जो कि अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, सेल को आपने जान लिया, टाइप भी जान लिया, अब सेल का ऑर्गेनाइजेशन हमको समझना है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल? द सिंगल सेल यूनिसेलुलर and multi-cell. Uni मतलब single and the multi is the multiple. Numbers of the cells which are constituted together and representing to the particular tissues, organs and after that to the communicating to each other and representing to the whole body of the animal, so that we are goes to the level of organization of the cell and their physiology. So just see here, there are the diagrams, there are the three diagrams is here to the first, second and the third. First is that this is the cell, this is the only to the representation of the cell, not to the only the representation of the cell, that is the free cell, that is the cell, the single cell, and this is the ऑर्गेनाइजेशन। सबसे अच्छी बात यह है कि किसी भी प्रोटोजोआ से लेके मैमल्स तक के जितने भी एनिमल्स होते हैं
उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी की जो इंटीग्रेशन और बॉडी का जो सिस्टम होता है वो लेबर ऑफ डिवीजन पे निर्भर करता है। अब आप सोचते होंगे कि लेबर ऑफ डिवीजन क्या है? लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब होता है श्रम विभाजन। श्रम विभाजन सामान्य शब्दों में आप श्रम समझते होंगे, कार्य जो किया जाता है श्रम, और विभाजन डिफरेंशिएट करते हैं उसको, मतलब कार्य के आधार पर। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्य कैसे वहां पे डिवाइड होगा? उत्पत्ति, जैसा हमने अभी मेंशन किया था कि इवोल्यूशन, खुद विकास के दौरान धीरे धीरे प्राणियों का जो है निर्माण हुआ है, उनमें विकास हुआ है, उनमें अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स की उत्पत्ति हुई है, अलग अलग प्रकार के चीजें उसमें डेवलप हुई है। उसी के कंसर्न में हम आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो सबसे पहले एनिमल्स की खासकर बात करते हैं, एनिमल्स में प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो हम सब सेलुलर लेवल पे जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि प्रोटोजोआ का जो लेवल है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब वहां पे हम सेलुलर लेवल को भी मिस करते हैं, lacking to the cellular level, the protoplasmic level, which means that to the protoplasm, that the fulfilled to the protoplasm and guarded or the surrounded by to the two layers ectoplasm and endoplasm, so that as you can say into the your books of the BSc and the intermediate classes. But now here I am representing here to the free cell, the single cell, the protoplasm, but in the further and further to the development of the animals in the higher classes from to the protozoa. So this is the point to be noted, that is the character always is goes to the further and further different are the hair and the animals which are carried about to the number of the organs. So what is the number of the organ? The constitution. The single cell is the unicellular cell and a cell is combined cell. The unicellular cells, 1 cell, 2 cell, 3 cell, 4 cell. The single cell is a unicell, but 2 or more cell is called the multicell. तो आप ये समझ सकते हैं कि सिंगल सेल जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, जिसका एग्जाम्पल है, और उसके बाद जितने भी एनिमल्स हैं वो लगातार फर्दर जब डेवलपमेंट की प्रक्रिया इवोल्यूशन के दौरान हुई है, भौतिक और रासायनिक जो प्रक्रियाएं हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलती रही, और जो एनिमल्स अपने में बदलाव करते हुए अपनी स्टेडी स्टेट को मेंटेन, होमियोस्टैसिस प्रोसेस को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उसको हम पाते हैं कि लगातार जो एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी में लगातार बदलाव होता चला गया, और वो बदलाव श्रम विभाजन के आधार पे हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं, पहले जो एनिमल्स हुए जिसको हम प्रोटोजोआ बोलते हैं, उनमें सबसे पहले फ्री ऑफ द सेल्स क्या? सिंगल सेल, जिनकी बॉडी का निर्माण एक सिंगल सेल से। उसके बाद डेवलपमेंट में अगर हम उसी सेक्टर्स में आएंगे तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेट, प्लैटिहेल्मिन्थेस, निमेटोड्स, एनीलिडा, इस क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो उसमें लेबर ऑफ डिवीजन के कारण उसमें परिवर्तन होता चला जाता है, और परिवर्तन के आधार पे हम उसमें क्या देखेंगे कि उसकी ऑर्गन्स में बदलाव होता जाएगा, और ऑर्गन्स में बदलाव होगा तो उसकी फिजियोलॉजी जो होगी वो भी बदलती जाएगी। अब ये कह सकते हैं कि यू कैन से अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ द एनिमल्स इज ऑलवेज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। So that is single cell. In here, after the single cell, these cells is communicating to the another cell. But here, the simple type of the connection, association. There are the differentiation is not at all. That cell is communicating to each other. That means level of division is representing into the started from to the protozoa. So as you can say about to the here, the level of the organization is changed. So the body of the organization, body of the animals, of the organism
is different. And another, ये तीसरा देखिए, तीसरे में जो आपको कम्युनिकेशन सेल्स का एक दूसरे से जुड़ाव देख रहे हैं आप, वो लगातार कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा और ये कॉम्प्लिकेशन एक सेल दूसरे सेल से जुड़ी हुई है। इसका क्या मतलब होता है कि हर सेल का ये अपने आप में वो खुद ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कौन सा कार्य करना है। कौन सा कार्य करना का मतलब ये होता है कि जब सेल किसी ग्रुप में बट जाता है, ग्रुपिंग में होता है, ग्रुप ऑफ द सेल्स, इन द सिंपल वर्ड ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टिश्यू, and after grouping of the tissue in the complex one is the organ, and when the organ is communicated to each other inside the bodies, so that we can say that is the particular body system. So here there are each of the cell which are one, which are determined to the their functioning itself. So here the organization is complicated. So हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एनिमल्स की का बॉडी है वो कॉम्प्लिकेटेड है, और कॉम्प्लिकेटेड बॉडी तभी बनेगी जब कोई भी पर्टिकुलर जो ऑर्गन्स होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होंगे और उनका काम जो होगा, उनका जो वर्क होगा, उनकी जो क्रियाविधि होगी, उनकी जो फंक्शनिंग होगी वो बिल्कुल अलग होगी, एकदम अलग होगी। यहाँ पे हम यही समझाने का आपको प्रयास किए कि एक सिंगल सेल फ्री सेल बना के फिर उसमें कम्युनिकेशन हमने दिखाया और फिर बेटर एंड बेटर कम्युनिकेशन टू ईच अदर एंड परफॉर्मिंग टू द होल एज अ सिस्टम। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ द बॉडी? द सिस्टम ऑल द सेल्स व्हिच आर कम्युनिकेटिंग टू द कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ द टिश्यू ग्रुप, organs and organ system group, that is called to the system. So here to maintaining to the in the physiology, animal physiology, the physiology of the different body system. What is the body system? The cells is grouping to the tissue is grouping to the organs, and the organs is formed to the communicating to each other to the particular body systems. So here we got to the number of the systems, which the particular animals, the chordate and invertebrate animals have to the numbers of the function in according to the numbers of the organs. So they started from the organs. कहाँ से उनका organs start हुआ? हमको ये देखने की बात है। हम यहाँ से start करेंगे प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से आप जब शुरू करेंगे और मैमल्स तक आएंगे तो लगातार देखेंगे कि उसकी जो और मैकेनिज्म है उसमें ऑर्गन्स के आधार पे ही डिवीजन उसका होता चला गया। जैसे जैसे ऑर्गन्स का विकास होता चला गया उसी प्रकार से उसके शरीर में, उसके बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी आती है और उसका निर्धारण उसके सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से होता है जिसको हम ऑर्गन्स बोलते हैं। और यहाँ पे फिजियोलॉजी ने हमें इसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसी बॉडी सिस्टम को समझना है और उस बॉडी सिस्टम के अंतर्गत numbers of the physical and chemical processes is going on to the लगातार lot of the millions of the chemical reactions is takes place inside the cell for the survival of the animals and the plants. And you can say that about the organism which are alive on the basis of the different kinds of the functioning and the mechanism on the basis of their mechanism which are performing to the animals. So here we as you mentioned that about to the in the previous period, here to the for the convenient study of the physiology, because I am earlier to mention that about to the numbers of the body system which are organized to the different kinds of the way to the organization of the tissue from the cell. So here to in the convenient का मतलब होता है उचित अच्छे तरीके से हम अगर किसी भी फिजियोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे और जो फिजियोलॉजी होती है हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल्स की बॉडी में वो कितने
hemoglobin. That means that is related to the formation of the RBC or blood. RBC is found into the blood. So homeopoietic, this is the Greek word. Homeo and poietic. Poietic is the formation of the heme. Heme is the part of the RBC, and the RBC is found in blood. So that system is related to the blood. As you mentioned, in the blood is made of the elements and the plasma. Plasma is basic constituents and about the 60%, and the rest of the part is the 40% is the RBC, WBC and the thrombocytes or platelets. So this is the very important, because I am telling about to the here mentioned that is the homeopoietic system and the number of system is here. So in the brief, and the second is reticuloendothelial system. होम्योपोएटिक सिस्टम जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन से बिलोंग करता है, ब्लड के फॉर्मेशन से बिलोंग करता है, जिसमें आरबीसी पाई जाती है, और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो हीमोपोएटिक सिस्टम से रिलेटेड होता है। तो हम ये जो सिस्टम पढ़ते हैं जिसका नाम होम्योपोएटिक सिस्टम है वो ब्लड से रिलेटेड होता है। दूसरे सिस्टम हम जाएंगे तो रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम, ये दूसरे प्रकार का सिस्टम है, ये भी मोर और लेस होम्योपैथिक सिस्टम से ही जुड़ा है। रेटिकुलो सिस्टम क्या होता है? रेटिकुलो सिस्टम जो हमारी स्प्लीन होती है वो स्प्लीन से जुड़ी है। स्प्लीन हमारे लेफ्ट साइड में पाई जाती है, बॉडी के लेफ्ट साइड में जो हमारा स्टमक होता है उसके लेफ्ट साइड में वहां उपस्थित होती है, और उसका सबसे बहुत बड़ा वर्क है। कहां पे वर्क है? दो टाइम इन द टू ड्यूरेशन। पहला, जब हम बच्चे होते हैं, या हम कह सकते हैं फिटस होते हैं, या फिर हम जब एडल्ट नहीं होते, उस कंडीशन में ये परफॉर्म करती है आरबीसी को बनाने के लिए। बट जब हम एडल्ट फेज में जाते हैं तो यही रेटिकुलोएंडो सिस्टम जो होती है वो आरबीसी reticuloendothelial system which are related to the destruction of the destruction of the RBC, which RBC is made up of the two parts, hemoglobin. Heme is the iron and the globin is the protein. So that's the destruction, breakdown of the, because the numbers of the RBC is developed in the millions of the RBC, and in the same way to the breakdown or the destruction of the RBC or the splitting of the RBC in this. कहने का मतलब ये है कि रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम में जो आरबीसी होती है वो टूटती है, और आरबीसी जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीसी का जो निर्माण होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला क्या? आयरन है, और दूसरा प्रोटीन। तो आयरन को हमारे शरीर के द्वारा फिर से इस्तेमाल कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, लेकिन जो प्रोटीन पार्ट होता है वो खराब हो चुका होता है, वो बाय ब्लड के माध्यम से वो आपके गॉल ब्लैडर यानी लीवर के पार्ट में आके उपस्थित होता है। कभी जब यही एंडोथेलियल जो सिस्टम होता है उसमें गड़बड़ी होती है, या हमारे लीवर के जो गॉल ब्लैडर होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं, उसकी जो डक्ट्स होती हैं वो अगर ब्लॉक हो जाती हैं तो वहां से वो निकल नहीं पाता थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हमें एक प्रकार का रोग हो जाता है जो कि ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो आपने देखा कि रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम एक अलग प्रकार का सिस्टम है। थर्ड पे हम चलते हैं, एज यू हियर टू मेंशन दैट लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ दैट इज also related to the liver. These are the systems related to each other is closely. In the lymphatic system, this system is study to lymphatic glands, thymus gland,
nodes, internodes, that is spread all over part of the body. So that is the one-way system. That is the lymph, is the fluid that is flowing to the one side. कहने का मतलब ये है, ये जो lymphatic system होता है, ये भी हमारी बॉडी में ब्लड की तरह पूरे बॉडी में थाइमस ग्लैंड, नोड्स और लसिकाएं के रूप में पूरे बॉडी में फैली होती है, जो कि एक प्रकार के सिस्टम होती है। और इसमें ब्लड जो कि दोनों प्रकार, दो टू साइड का मतलब यह है कि एक तरफ से ब्लड जाता है और दूसरे तरफ से ब्लड आता है, जबकि इसमें सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ये वन वे सिस्टम कहलाता है। फोर्थ पे हम चलते हैं, इन फोर्थ इज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, इन द सर्कुलेशन that is involved into the numbers of the organ. Who's the organ? First is the heart, second is the blood, and arteries and vessels. Because in the circulatory system performing to the circulation through the channel via to the heart, lungs, and the body parts. So the blood is flowing, but this is very important to the study of the heart, because the heart is the pumping station and the flow of the blood along with the pumping station. So circulatory system में हम हार्ट के विषय में, ब्लड और उसके आर्टरी और वेन्स, धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ते हैं, जहां से ब्लड क्या करता है, स्थानांतरित होता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। एक तरफ से आर्टरी से ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है और जो वेन्स होती हैं वो बॉडी हार्ट में ब्लड को लेके आती है। इसी माध्यम से हमारी जो बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फोर चैम्बर्ड होता है, दो ऑर्किल, दो वेंट्रिकल होते हैं, टू ऑर्किल्स एंड टू वेंट्रिकल्स which make to the four chamber heart, and the blood which are passes via to the heart through the lungs into the body parts, and another way the body parts, that is a deoxygenated blood is goes to the heart and then body parts for the after the oxygenation of the blood. मतलब कि जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी में पूरे पहुंचता रहता है, जाता रहता है, और एक तरफ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरी तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता रहता है। फिफ्थ पे चलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द इंपॉर्टेंट सिस्टम which are communicating to each other to the circulatory system, because the circulation of the blood is through the respiratory system, because the respiratory system is the respiration, inspiration or expiration. Inspiration in which the fresh air which are received from to the external environment, and the expired air, that means to the CO2 after the metabolic activity is expired through that cell. So the blood which are carried to the oxygen from to the circulatory system, from the respiratory system, so that respiration is a very good gaseous exchange takes place. Respiratory system में एक्सपायरेशन और एक्सपायरेशन की प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, और यही ऑक्सीजन आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ब्लड को कैरी करता हुआ अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर पहुंचता है, जहां पे मेटाबॉलिक उपापचयी क्रियाओं के माध्यम से वो वहां पे यूज होके CO2 के रूप में फिर से उसी माध्यम से वापस आ जाता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड मेटाबॉलिज्म। Digestive system is an important system for the survival of the animals, because the digestion, what is the digestion? Digestion is the process in which the animals which are take to the complex indiffusible substances into the simple and diffusible into the blood and carried by the each cell for the metabolic
अंतर्गत हम भोजन के रूप में जो ग्रहण करते हैं वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, जो एंजाइमेटिक एक्शन, जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम है एंजाइमेटिक एक्शन के माध्यम से ब्रेक डाउन होके हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम उसको मेंशन करेंगे आगे आपके अगले चैप्टर में डाइजेशन में अलग अलग, जैसे कि हम जो है ओरल कैविटी है, आपका इसोफेगस है, आप स्टमक है, लिवर है, ड्यूडेनम है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, पैंक्रियाज है, ये सारे उसमें रोल प्ले करते हैं, जिसके माध्यम से डाइजेशन की प्रक्रिया होती है और उसके बाद हेपेटिक पोर्टल वेन के माध्यम से वो लिवर में पहुंच के पूरे जो न्यूट्रिएंट मटेरियल्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव मटेरियल्स होते हैं, वो पूरे बॉडी पार्ट्स में प्रत्येक से पहुंचते हैं, जहां पे एसिमिलेशन की प्रक्रिया होती है वहां, और जो अनवांटेड, जो डिफ्यूज नहीं हो पाते, वो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से बाहर कर दिए जाते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म अभी हम उसको आगे मेंशन करेंगे। एंड द सेवेंथ एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आफ्टर द टेकिंग ऑफ द नंबर्स ऑफ द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ द फूड एंड टेक्स टू द सेवरल काइंड्स ऑफ द एंजाइम इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, so they degraded of the food material into the simplest one, so and after reaching of the oxygen into the each cell to perform metabolic activity to a nitrogenous waste material, sweat and others which help from to the outside body. But in this excretory system, the most important things, excretory system में जो important है, that is the kidney, and kidney is made up of the nephrons. Nephrons is the unit of kidney, so millions of the nephrons which are constituted to the each kidney, and the kidney which are placed on to the lumbar region of the body, so perform to the nitrogenous waste material and maintaining to the purity of the blood, and the blood is goes to the each kidney and purify, and after that to the reabsorption of the food material, and then blood is goes to the via to the efferent and afferent arterioles to the renal artery and veins. So next, endocrine system. Endon is the breathing. Endocrine system एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं जिनका कलेक्शन के रूप में हम उसको एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ये इसमें डक्टलेस ग्लैंड पाई जाती है, जिसके माध्यम से हम जो है हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स को निकालती है, और उस हार्मोन्स के माध्यम से ही हमारे पूरे बॉडी की प्रक्रियाओं का संचालन होता है, नियंत्रण होता है और कोऑर्डिनेशन होता है। एक दूसरे से अगर कोई प्रक्रियाएं हमारे बॉडी में परफॉर्म होने जा रही हैं तो उसमें हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और वो हार्मोन्स हमारे अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, पिनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड है, एड्रिनल है, टेस्टिस है, ओवरी है, और आपका लीवर भी कुछ प्रकार का वर्क करता है, पैंक्रियाज है। तो इस प्रकार से सारे अलग अलग जो एंडोक्राइन सिस्टम से एक पर्टिकुलर हार्मोन्स निकलता है, और इसका जो नियंत्रण होता है आपके ब्रेन्स होता है, जो कि आगे वाले चैप्टरों में हम बताएंगे आपको, वो जिनके माध्यम से हमारे पूरे बॉडी का नियंत्रण होके हमारी प्रक्रियाओं को परफॉर्म किया जाता है। Along with the reproductive system, this is the important thing. Reproductive system is the prajanan tantra, that the animals which are one to that about to the their increase to the generation. So the reproductive system, in the reproductive system, the male and female reproductive system is different. Male is the testis, female is the ovary. So that is describing to the earlier in the classes to the related topics. And the last is one, nervous system and the special senses. Nervous system and the sensory organ is a more and more important for that to the performing to the our body function,
giving to the reflexes, and the numbers of the neurons which are constituted together to the forms to the complex type of the system in our body or particular animals. So in the neurons is the unit of the nervous system to the lot of the neurons is the 10 millions of the neurons of the perform constitute to the nervous system and receive to the nervous system which are performing along with the special sense organs, eyes, ear, tongue, skin and the nose and the others internal body, that is the lot of the sensory organs is present. So that's according to the environment, according to the object, according to the things which are stimulated, if any person, that person is given to the reflexes along with the help of these neurons, that's neurons which perform a particular function. अब इसमें आप देखिए हमने इस सिस्टम के बारे में बताया जो कि आपको फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ने हैं, कुछ सारे सिस्टम के बारे में बताया, कुछ विशेष चीजें हैं जो कि हमारी फिजियोलॉजी, तो हमने ये बताने का ये सेंस ये था कि ये जितने भी सिस्टम है हमारे बॉडी में वो सब एक दूसरे से रिलेटेड है और इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड बॉडी सिस्टम बोला जाता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन्स के माध्यम से है और हर ऑर्गन जुड़े हैं और ऑर्गन्स का जो विकास है, ऑर्गन्स का जो निर्माण है वो आपको पता है कि ऐसा as you know that about that is made up of the cell. So here that is the maintenance of the body is the two in according to the environment, that is two processes, homeostasis and the metabolism. The homeostasis is any self-regulating processes by which biological system to maintain stability while adjusting to the conditions that are optimal for survival. होमियोस्टेटिस प्रोसेस जो आपका जो वातावरण होता है, वातावरण के अनुसार भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं उसके अनुसार हमारी या किसी भी एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो अपने आप को संतुलित करती है, अपने आप को एक उचित तापमान पर रखती है और जिस तापमान पे वो रहती है उसी को होमोस्टैटिस कहते हैं। ये दो शब्दों से बना है होमियो इज द सेम, स्टैट्स इज द स्टैट्स कंडीशन, एक सेम तापक्रम पे है ना, इन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट द एनी physical and chemical reactions. The animals are the human beings which are adapted to their body condition to maintain their temperature for their survival. अपने जीवन को चलाने के लिए हर प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए जीवित रहते हैं। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रक्रिया को होमोस्टेट्स बोलते हैं और इसमें लगातार लाखों प्रक्रियाएं, लाखों केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जो कुछ हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कुछ जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें ब्रेक करती हैं और कुछ जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें नए बनते रहते हैं। वो उसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, उसको हम मेटाबॉलिज्म के रूप में जानते हैं। तो अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म कैन बी डिफाइंड एज टू दिस इज द नंबर्स ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस फॉर द फूड स्टफ्स। भोजन के लिए जो हमारे बॉडी में लगातार केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं वो किस लिए होते हैं? फूड स्टफ्स टू बी यूटिलाइज्ड टू बाय द बॉडी। भोजन बॉडी में लगातार केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं और वो केमिकल रिएक्शन इसलिए होते हैं कि हमारे बॉडी को जीवित रहना है, हमें जीवित रहना है। इसलिए एनवायरनमेंट से हम जिन चीजों को बॉडी के भोजन के रूप में अंदर लेते हैं और वो डिग्रेड होके मेटाबॉलिक प्रोसेस में जाते हैं जहां से एनर्जी निकलती है और एनर्जी निकलने के बाद जब टूटती है, जब डिग्रेडेशन
बाद मेटाबॉलिक प्रक्रिया में जाती है तो जो टूटती है तो उसको कैटाबॉलिज्म बोला जाता है। और जब वही जो एनर्जी निकलती है और वो एनर्जी फिर से यूटिलाइज कहीं पे किसी नई चीजों में बनाने में होती है तो इसका एनाबॉलिज्म बोलते हैं। कैटाबॉलिज्म का सेंस ये होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड एंड एनाबॉलिज्म इज द सिंथेसिस ऑफ द न्यू कंपाउंड फॉर द सब्सटेंस सो दैट हियर टू द metabolism and the homeostasis dependent to each other. If the homeostasis is disturbed, so the metabolism is also disturbed and the metabolic process is not going to the well in the condition such that so the homeostasis is disturbed. So here now today topic is related to the animal physiology, particular what is the physiology. So numbers of the definitions, what is the cell organization, what is the numbers of the system, and they are related to the metabolism and the homeostatic process as well, which are involved in this condition, so that we just I hope you are learn to the numbers of